আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ঘুরে দেখব হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্মৃতিজড়িত মক্কা শহর। আমরা দেখব আরাফাত ময়দান, মসজিদে নাবেরা, জাবালে রহমত, মিনা, জামারাত তিন শয়তান, গারে হিরা, জাবালে সুর, জান্নাতুল বাকি, জান্নাতুল মালা, নেহেরা জুবেদা। এই সমস্ত ভ্রমণে আজকে আমি আছি কুতুবউদ্দিন শেখ। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پیارے پیارے معزز حجاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مکہ پاک کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ سفر 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ دوران سفر آپ حجاج اکرام کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ جو مقامات آئیں گے 18 مقامات یہ آپ کو بہتر انداز میں، اچھے انداز میں ان کی زیارت کروائی جائیں گی اور ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ لیکن اس دوران آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اگر آپ موبائل فون کے ساتھ لگے رہیں گے، باتوں میں لگے رہیں گے یا سوئے رہیں گے تو پھر آپ ان مقدس مقامات کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ سفر خیر عافیت کے ساتھ گزرے۔ میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا وما ربنا لمنقلبون۔ سب سے پہلے ہم اس مقام کی زیارت کریں گے میدان عرفات کے اندر جبل رحمت پہاڑ، رحمت والا پہاڑ، وہ پہاڑ جہاں پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اپنے حج کا آخری خطبہ دیا تھا، کسوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر ہوائی گڈے کا خطبہ دیا تھا، زندگی کے مسائل بتائے تھے، زندگی گزارنے کے طور و طریقے بتائے تھے۔ کم و بیش 1,50,000 صحابہ کرام رضوان اللہ میں خطبہ سن رہے تھے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں ہمارے ماں اور باپ کی دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب جنت سے دنیا پر آ رہے تھے تو آپس میں جدا ہو گئے تھے۔ 350 سال تک یہ روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ 350 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مل کے سری لنکا میں اتارا جاتا ہے۔ اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا جاتا ہے، جہاں پر ان کا مزار مبارک بھی ہے۔ کہاں جدہ اور کہاں سری لنکا، کہاں جبل رحمت پہاڑ۔ جب جبل رحمت پہاڑ پر آتے ہیں، ایک سائڈ پر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک سائڈ پر اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آدم آج تم جو بھی دعا مانگو گے آج تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کم و بیش 2 دعائیں مانگی تھی، اس کے بعد ان کی دعا قبول ہو گئی تھی اور یہاں پر ہی ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کو انہوں نے پہچان لیا تھا۔ عرفات تو مانی ہوئی ہے جاننا پہچاننا۔ 9 ذی الحج کو
लेफ्ट साइड बाएं तरफ देखते जाए, येलो कलर पीले कलर के आपको बोर्ड नजर आ रहे हैं। अरफात की हदूद, ये अरफात की बाउंड्री है। यहाँ से मैदान अरफात शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम मैदान अरफात के अंदर इंटर हो जाएंगे। 9 जिलहज को जो मुसलमान किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री से एहराम बांधकर अरफात के हदूद में दाखिल होता है, वो हाजी कहलाता है। हज के 3 रुकन है। हज के 3 रुकन है। हज का फर्स्ट रुकन फर्ज रुकन, जिसको वकूफ अरफा कहा जाता है। यानी अगर आप वकूफ अरफा नहीं करेंगे तो आपका हज नहीं होगा। वकूफ अरफा फर्स्ट रुकन फर्ज रुकन वो मैदान अरफात में, वाजिब रुकन सेकंड रुकन वो मुजल्फा के अंदर जिसको क़याम कहते हैं, रात गुजारना, और सुन्नत रुकन जिसको रमी कहते हैं, शैतान को कंकर मारना, वो मीना में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अरफात के अंदर इंटर हो रहे हैं। 2 ज़ियारतें अरफात के अंदर है हमारी, जबल रहमत पहाड़ और मस्जिद निमरा, जहां पर हज का खुतबा होता है। हम लोग अपने घरों में बैठकर टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, सुनते हैं। आप वो खुशकिस्मत हुज्जाज इकराम हैं जो आज मस्जिद निमरा की लाइव ज़ियारत करेंगे। मस्जिद निमरा पूरा साल बंद रहती है। पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए इसको खोला जाता है, यानी 9 जिलहज वाले दिन इस मस्जिद के ताले खोले जाते हैं। हज का खुतबा होता है और उसके बाद एक अजान होती है और 2 नमाजें होती हैं। तो इंशाल्लाह मस्जिद निमरा की भी हम ज़ियारत करेंगे और फिर जबल रहमत पहाड़ की भी। ये अरफात की बाउंड्री है, यहाँ से मैदान अरफात शुरू हो जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 मीनार, 3 गुंबद वाली मस्जिद आपको नजर आ रही है, मस्जिद निमरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह अभी हम मैदान अरफात के अंदर इंटर हो जाएंगे, जबल रहमत पर जाएंगे। जबल रहमत पर पहुंचकर आपने दुआ मांगनी है, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, इस अंदाज से दुआ मांगनी है कि ऐ मालिक अर्ज़ो समा, यहाँ पर हमारे माँ और बाप की दुआ कबूल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। अरफात से जब हम निकलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आगे की ज़ियारतें हमारी शुरू हो जाएंगी। हाजियों के पैदल चलने वाले रास्ते आपको दिखाए जाएंगे। नारे जुबादा की ज़ियारत करेंगे, मुजल्फा का मैदान में इस्माइल की ज़ियारत करेंगे जहां पर कुर्बानी हुई थी। मस्जिद खैफ की ज़ियारत करेंगे, मीना की वादी आपको दिखाई जाएगी। मीना की वादी आपको दिखाई जाएगी और जमारात शैतान वाली जगह एक बार फिर आपको दिखाई जाएगी, जिसकी आपने दुर्गत बनाई थी। मीना से हम निकलेंगे तो फिर आगे जबल नूर, गारे हिरा, मुकाम अतास, जन्नतुल माला कब्रिस्तान, मस्जिद जिन, मस्जिद फतह, मस्जिद शजर, जबल अबू कबास पहाड़। और हमारी आखिरी ज़ियारत कौन सी होगी अगर किसी को पता है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, गारे सोर, जबल सोर, गारे सोर, जहां पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी। तो मुतमईन हो जाए भाई साहब, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हूं आखिरी दम तक, जब तक हम होटल में जाते। आपने कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं करनी है। ये नाचीज आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ है, आपके अच्छे तरीके से ज़ियारत करवाई जाएंगी। और अभी हम मस्जिद निमरा में पहुंच रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 मिनट यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकेगी। अगर मस्जिद खुली होती तो इंशाअल्लाह आधा घंटा हम यहाँ पर रुकते। मस्जिद बंद है, तहियातुल मस्जिद। माशाअल्लाह,
2 रकात हमने नफल पढ़ने हैं, कोई भी नफल आप पढ़ सकते हैं। शुक्राने के नफल पढ़ सकते हैं, तहियातुल वुज़ू, तहियातुल मस्जिद, 2 नफल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमने जबल रहमत पर जाना है। माशाअल्लाह हमारे ड्राइवर बहुत ही प्यारे हैं, ये सबसे पहले हमें यहाँ लेकर आए हैं, तो फिर इंशाअल्लाह हम जबल रहमत पर भी जाएंगे। अभी मौसम भी ठंडा है, आप सबने मेरे साथ चलना है, तो इंशाअल्लाह हम ज़ियारत भी करेंगे, वहाँ पर इज्तिमाई दुआ भी होगी, तो फिर इंशाअल्लाह आगे की ज़ियारतें हम करेंगे। प्यारे हुज्जाज इकराम, हाथों को बुलंद कीजिए, अल्लाह पाक से दुआ करते जाए कि ऐ मालिक के अर्ज़ समा, जिस तरह तूने हमें इस साल हज पे बुलाया है, आने वाले साल इसी तरह हमें फिर हज पे बुलाना। हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मैदान अरफात के अंदर इंटर हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, खुशकिस्मत आप लोग हुज्जाज इकराम हैं जो आज मस्जिद निमरा की लाइव ज़ियारत कर रहे हैं। मस्जिद निमरा पूरा साल बंद रहती है, पूरे साल में सिर्फ 1 दिन के लिए उसको खोला जाता है। 263 इसके दरवाजे हैं। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि कमोबेश 1,50,000 हुज्जाज इकराम एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। वो लास्ट से शुरू होती है, यहाँ पर खत्म होती है। फौरन से नीचे आ जाए, सिर्फ 5 मिनट हम यहाँ पर रुकेंगे। মসজিদে নামেরা। মসজিদে নামেরা এখান থেকে মসজিদে যে হলুদ যে বোর্ডটা লাগানো আছে ওই বোর্ড থেকে শেষ। পাশে কেউ যদি এই পাশে না আসে, আরাফাত ময়দানের নির্দিষ্ট জায়গাতে যদি না আসে, তা হজ হবে না, হজ বাতিল। ওই হলুদ বোর্ডটাকে ফলো রেখে সকলকেই হলুদ বোর্ডের এই পাশে আসতে হবে, নাহলে হজ হবে না। অনেক নিম গাছ আছে। এই নিম গাছ চারাগুলো বাংলাদেশের যারা কর্মীরা এরাই নিয়ে এসে লাগানো হয়েছে। এই মসজিদে জোহর এবং আসর একসঙ্গে জামাত হয়। মসজিদে নামেরা 9 জিলহাদ আরাফাত দিন লক্ষ লক্ষ হাজি এখানে মিলিত হয় একসঙ্গে। হাজির উঁচু কণ্ঠে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক ধ্বনিতে ভরে উঠে এখানকার আকাশ বাতাস। এই মসজিদটি সেই স্থান নিয়মিত যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন। এই স্থানে হজরত ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিসসালাম হজরত ইসমাইল আলাইহিসসালামকে হজের নিয়ম কারণ শিখিয়েছিলেন। এই মসজিদ থেকে হজের খুতবা হয়। মসজিদে 6টি মিনার রয়েছে ও 3টি গম্বুজ। মসজিদে নামেরা মসজিদটা এতই যে বড়, এর দরজা আছে 263টি, আর এত বড় যে হাজিরা 1,50,000 হাজি একসঙ্গে জামাত হয়। এখানে আসর আর জোহর একই সঙ্গে হয়। এটা 9 জিলহাদের দিন, হজের দিন সমস্ত হাজি একই সঙ্গে কসর নামাজ পড়া হয়, জোহর এবং আসর। নামাজের শেষে এখানটায় খুতবা আরম্ভ হয় 2.5 ঘন্টা। এই যে बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अपने आजू बाजू देख रहे सब लोग आगे। साथ भाई नहीं वो आएंगे, चलो चलो अपने तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हर सब हमने मैदान अरफात के अंदर दाखिल होकर मस्जिद निमरा की ज़ियारत की है। मस्जिद निमरा के 263 दरवाजे हैं। कितने? 265 दरवाजे हैं और ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि कमोबेश 1,50,000 हुज्जाज इकराम एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं। पूरा साल ये बंद रहती है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम जबले रहमत पर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? जबले रहमत पर। 50 हुज्जाज इकराम गाड़ी में सफर कर रहे हैं। कितने? 50 हुज्जाज इकराम। सबको मेरी समझ आ रही है? आ रही उर्दू लैंग्वेज है, सबको समझ आ रही है? आ रही है। जिसको समझ ना आए तो मुझे बताना है। उसका बांग्ला में बात बताइए। बांग्लादेश भी है। तो 50 हुज्जाज इकराम से मुझे कोई ये बात बता सकता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज और कितने उम्र किए हैं? किसी को पता है? एक हज के है, 4 उम्र किया। 2 उम्र और 2 उम्र 4 एक हज और 2 उम्र। और किसी को पता है? हमको तो पता है 4 उम्र किया है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 2 लोग तो बोल गए हैं, इन्होंने बताया मुझे। तो बाकी आपकी मालूमात के लिए भी बताता चलो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जिंदगी में एक हज और 4 उम्रे किए थे। और उसी हज का खुतबा हुज्जतुल विदा का खुतबा जबले रहमत के दामन में दिया था। किस्वा नामी अपनी ऊँटनी पर बैठकर 2.5 घंटे का खुतबा दिया था। जिंदगी के मसाइल बताए थे, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बताए थे। तो अभी हम जबले रहमत पर जा रहे हैं। ये हाजी साहब जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ये सारा मैदान अरफात है। ये अरफात का मैदान है। और अरफात का इलाका कितना है किसी को पता है? 7 से 8 किलोमीटर का ये इलाका है। 7 से 8 किलोमीटर का ये सारा इलाका है। और अरफात की खासियत वजह आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। बातें नहीं कर रही है प्लीज। मैं आपकी खातर, आप हुज्जाज इकराम की खातर बोल रहा हूँ। 7 से 8 किलोमीटर का ये इलाका है। क़यामत वाला दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा। मैशर का जो मैदान लगेगा वो इसी मैदान में लगेगा और इस मैदान को मुल्क शाम तक बढ़ाया जाएगा। अल्लाह के मेहमान जो हुज्जाज इकराम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, क़यामत वाले दिन वो इसी मैदान में उठेंगे। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाएं बुलंद करते हुए उठेंगे। तो प्यारे हुज्जाज इकराम आधा घंटा हम यहाँ पर रुकेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है। रश भी बहुत ज्यादा होता है। बाज़ हुज्जाज इकराम गाड़ी भी भूल जाते हैं और रास्ता भी भूल जाते हैं। आप सब हुज्जाज इकराम ने मेरे साथ चलना है। जो हुज्जाज इकराम मेरे साथ चलेंगे उनको आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल मैं साथ में लेकर आपको जाऊंगा। जिनके पास बल्कि आप सब लोग जिनके पास यहाँ का लोकल नंबर है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर ले। जल्दी से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। जल्दी से 054 देख रहे आगे के रश बहुत ज्यादा है। 054 85 75 315। এই সেই জায়গা জাবালে রহমান। এখানে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়া আলাইহিস সালাম এখানে মিলিত হয়েছিল। এই পাহাড়ে
দোয়া কবুল হয়েছিল। এখানে আদম আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল হয়েছিল এবং একে অপরকে চিনতে পারছিল না, তাই হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম পরিচয় করে দিলেন। এই সময় দুজনে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। এইটি সেই সময় ছিল, এই সময় হায়েজ হয়। এরপর মিলনের ফলে और अभी हम खड़े हैं পৃথিবীতে अपने रहमत के আমরা सामने, रहमतों वाला पहाड़, जहाँ पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। अपने हज का खुतबा यहाँ पर दिया था, जहाँ पर कि हमारे माँ और बाप की दुआ कबूल हुई थी। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो आपकी हाजिरी होगी। उस साइड से भी देखें तो बहुत बड़ा पहाड़ था, अभी इसको काट दिया गया है। इस तरफ से भी रास्ता बंद हो गया है, आगे वो देखें वहाँ पे ग्रिल लगी हुई है। ऊपर कोई जाना चाहता है, फिर भी कोई जाना चाहता है? बुजुर्ग लोग भी हैं, हाथ खड़ा करें, कौन जाना चाहता है? अच्छा चलो अभी हम इज्तिमाई दुआ करते हैं, फिर एक रास्ता आगे से है वो भी देखते हैं। वो सीढ़ियों वाला रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, तो जिन्होंने अगर जाना हुआ तो वो ऊपर चले जाना है। तो जिन्होंने यहाँ पे कोई नफल वगैरह पढ़ना है, वजू करना है, वो इधर मेरे साथ रुकेंगे तो आपको वॉशरूम वगैरह मैं बताऊंगा। इधर भी वॉशरूम बहुत भाई दुआ करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सह्बिहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिहि व सह्बिहि या नूरुल्लाह। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदा अल-मौत ला तुहज़िबना बअदा अल-मौत व ला तुहज़िबना इन्नका ला कुल्ली शैइन क़दीर। मालिक अब्द समा हमारी मुख्तसर से हाथी तफसील मालिक मौला, आज हम उस दर पर खड़े हैं, उस मुक़द्दस मुक़ाम पर खड़े हैं जहाँ पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। मालिक अब्द समा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास का वास्ता हमारी हाथी को मालिक मौला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास का वास्ता मालिक मौला हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा। मालिक अब्द समा हज की अदायगी तो हमने अदा कर दिया, तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, लेकिन मालिक मौला हमें कोई पता नहीं कि कौन सा रुकन हमने छोड़ दिया, कौन सा रुकन अदा किया है। मालिक मौला वक़्त अरफा के अंदर जो हमसे गलती हुई है माफ कर दो। आमीन। वादी मुज़ल्लफ़ा के अंदर जितनी गलती हुई है, मीना के अंदर जितनी गलती हुई है, माफ फरमा कर हमारे हज का पूरा मालिक मौला। बहुत सारे लोग बीमार थे मालिक मौला, हमारे स्कूल के साथ जितने लोग बीमार थे, जिनके घरों में जितने लोग बीमार थे मालिक मौला, घरों में अस्पतालों में जितने लोग बीमार थे सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। मालिक मौला जो औलाद थे उनको नेक और साले औलाद नसीब फरमा। मालिक मौला जो तंगदस्त थे उनकी तंगियां दूर फरमा। मालिक मौला जो कर्जदार थे उनकी कर्ज को दूर कर। मालिक मौला फिर तेरी वारका में इल्तिजा करते हैं, तमन्ना करते हैं, आरज़ू करते हैं। मालिक मौला हमें बार बार ये सादत नसीब फरमा कि हम ये तेरे मुक़द्दस मक़ामात देख सकें। मेरे मालिक मौला बहुत सारी तमन्नाएं हम लेकर यहाँ पर आए हैं। मालिक मौला हम अपने दिलों का राज किसी को नहीं बताते, हमारे दिलों के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं जो तू बेहतर जानता है। मालिक मौला जितने भी नेक ख्वाहिशात, जितनी भी नेक तमन्नाएं लेकर हम यहाँ पर आए हैं वो कबूल फरमा। आमीन। मालिक मौला मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की खैर फरमा। मालिक मौला मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को फतह दे, उनको आज़ादी दे। मालिक मौला जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, जिनकी ये ख्वाहिश है, वसाइल नहीं है, मालिक मौला आज हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। मालिक मौला उस दर पर खड़े होकर दुआ करते हैं जहाँ पर हमारे माँ और बाप की दुआ कबूल हुई थी। मालिक मौला उन लोगों को भी ये साथ नसीब फरमा कि वो तेरा पाक देख सके। सुभान अल्लाह के हमारा तकलीफ व सलाम अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अल्लाह न करे आपको कोई मसला बन जाए, इबादत में मसला हो जाएगा। तो ये आगे से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ठीक है, देखिए ये आगे से जा रही है और वापस इसी बात पे और आप सब ने यहाँ पर ये इकट्ठे होना है, ठीक है। एक खुली जगह है, ये सीढ़ियाँ, और यहाँ पर आपने इकट्ठे होना है, जहाँ से फिर मैं लेके आपको आगे जाऊँगा। जिस तरह आप जाएंगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, सब ने इधर आकर হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়া আলাইহিস সালাম যতদিন জান্নাতে ছিলেন ততদিন এই দুইজনের উপর জান্নাতের কোনো স্থান যাওয়ার মনোপত্তি বন্ধ ছিল না। শুধুমাত্র মামনিয়া গাছের কাছে পর্যন্ত জান্নাতে এমন একটি গাছ ছিল, তার ফল খাওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের দুইজনকে বারণ করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ও মা হাওয়া আলাইহিস সালামকে বারণ করে, তখন লানতি শয়তান এই সময় সেই লানতি শয়তান হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি বদলা নেয়ার জন্য সুযোগ এসে গেল। শয়তান ইবলিস রাত দিন চেষ্টা করতে লাগলো কিভাবে ওদেরকে শয়তানের চক্রান্ত ফেলা যায়। শয়তানের ইচ্ছা ছিল যে আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়া আলাইহিস সালামের আল্লাহর কথা অমান্য করা, আল্লাহর কথা না শুনে ওই গাছের জন্য ফল খায়। তো ফল খেয়েছিল ওই গাছে। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুজনকে বলল, তোমাদেরকে যে বারণ করা হয়েছিল ওই গাছের ফল না খাওয়ার জন্য। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুজনকে বলল যে তোমরা তোমাদের জান্নাতে আর থাকা যাবে না। তো দুজনকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হলো। এবার তোমরা বিশেষ সময় পর্যন্ত এই জমিনে থাকবে, যেখানে তোমরা একে অপরের শত্রু হয়ে থাকবে, আর যেখানে তোমাদের মৃত্যু হবে, আবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হবে। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह, दो ज़ियारतें हमारी मुकम्मल हो गई हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल थी। तो फरमाएंगे, आप सब ने भी अपनी आंखों से देखा कि कितना ज्यादा रश था और हमारे लिए कितना मसला बन जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे हाजी साहब गाड़ी में आ गए हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमारी आगे की ज़ियारतें शुरू हो गई है। अभी हम अरफात से निकल रहे हैं, येलो कलर पीले कलर के ये बोर्ड आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ से मैदान अरफात अंदर शुरू हो जाता है। मस्जिद निमरा एक बार फिर देखते जाए, येलो कलर का बोर्ड देखते जाए, पीले कलर का आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है मस्जिद के साथ में। इससे आगे वाला जो हिस्सा है ये अरफात की हदूद से बाहर है। बाज़ हुज्जाज इकराम इस मस्जिद के बाहर आकर बैठ जाते हैं जिनका हज नहीं होता। हाजी बनने के लिए अरफात की हदूद के अंदर आना जरूरी है, लाजमी होता है। वकूफ अरफा अगर आप नहीं करेंगे तो आपका हज नहीं होगा। चंद सेकंड के लिए भी अगर आप अरफात की हदूद के अंदर पहुंचेंगे तो आपका वकूफ अरफा हो जाएगा। तो प्यारे हुज्जाज इकराम तवज्जो फरमाएंगे, आप खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह पाक ने आपको अपने घर में बुलाया है, अपने घर की हाजिरी नसीब की है। भाई साहब, यहाँ पर आपको
आपकी दौलत नहीं लेकर आई, आपको आपकी शोहरत नहीं लेकर आई, बल्कि भाई साहब आपको अल्लाह के घर से बुलावाया है, आपको मदीने वाले का बुलावाया है, काली कमली वाले का बुलावाया है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये सादत की बात होती है सब। इंडियन कंट्री में तकरीबन 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ को तजावज कर गई है। जरा सोचे ना अपने ज़हन में कि यहां पर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान ही नहीं आते, पूरी दुनिया के मुसलमान यहां पर आते हैं। तो आप जरा सोचें कि एक ही वक्त में अगर पूरी दुनिया के मुसलमान यहां पर आ जाए तो फिर हमें किसी गाड़ी में जगह मिलेगी, किसी होटल में जगह मिलेगी? जरा सोचें ना अपने ज़हन में। उम्र की अदायगी के लिए, नमाज की अदायगी के लिए जब हम मताफ हरम शरीफ में जाते हैं, कितनी जगहों से रास्ते बंद होते हैं। आपकी जो शटल सर्विस बसें आपको लेकर हरम में जाती हैं, कितना दूर उतारती हैं, आगे कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है। क्या हमें वहां पर जगह मिलेगी? नहीं। भाई साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप वो खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह पाक ने आपको अपने घर में बुलाया है, अपने घर की हाजिरी नसीब की है। आप हुजाज इकराम उस मुकद्दस मकाम पर हैं, उस पाकीज़ा धरती पर हैं जहां पर हदूद हरम के अंदर एक नमाज पढ़ेंगे 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा, एक बार दुरूद पाक पढ़ेंगे 1 लाख दुरूद पाक का सवाब मिलेगा। ये वो पाक धरती है जहां आपको उस वक्त याद आएंगी जब आप अल्लाह के घर हरम शरीफ को छोड़कर वापस अपने कंट्री, अपने मुल्क में जाएंगे। काश 2 उम्रे और कर लेते, 2 तवाफ और कर लेते, 1 सपारा और पढ़ लेते। तो प्यारे हुज्जाज इकराम, बहुत सारे हाजी साहब गाड़ी में ऐसे भी होंगे वाली मौत नसीब फरमा। और सब ये दुनिया किसी ने चोरी नहीं करनी है, तेरी और मेरी में हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, हमारे साथ वही कुछ जाएगा जो हमारे अमाल होंगे। ये आलीशान बंगले, ये महल, माल, दौलत, पैसा, ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा, हमारी हथेली जान से रह जाएगी। और इस जान के लिए वहां पर जो सवाल और जवाब होंगे उसकी हमने तैयारी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम हाजियों के पैदल चलने वाले रास्ते देखेंगे और मस्जिद निमरा एक बार फिर देखते जाए। 6 मीनार, 3 गुंबद वाली मस्जिद जहां पर हज का खुतबा होता है, हम लोग अपने घरों में बैठकर टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, सुनते हैं। राइट साइड, लेफ्ट राइट दानी साइड पर देखेंगे 3 सुरख रोड आपको नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हाजियों के पैदल चलने वाले रास्ते हैं। दूर तक नजर को दौड़ाते जाए आप। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती है 9 ज़िलहज की रात को यहाँ पर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज के दौरान मेट्रो ट्रेन सर्विस भी होती है, बस सर्विस भी होती है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पैदल चलने वालों की भी होती है, जो आपने देख लिया होगा। तो प्यारे हुज्जाज इकराम, इसके बाद हम नहर ज़ुबैदा की ज़ियारत करेंगे। कौन सी नहर? नहर पीछे से आवाज नहीं आ रही। नहर ज़ुबैदा। तो जो फरमाएंगे खलीफा हारून रशीद इराक के बादशाह थे, खलीफा हारून रशीद इराक के बादशाह थे। उनकी जोजा खातून ज़ुबैदा, मलका ज़ुबैदा, एक बार ख्वाब में क्या देखती है कि उनके सर पर एक टोकरी है, उनके सर पर एक टोकरी है, बहुत सारे परिंदे उसमें खाना खा रहे थे। मिस्र के एक इमाम साहब से उन्होंने ख्वाब की ताबीर पूछी, तो इमाम साहब ने फरमाया कि अल्लाह पाक आपसे बहुत बड़ा काम लेने वाले हैं। हैरान हो जाती है कि क्या पता मुझसे कौन सा बड़ा काम लिया जाएगा। 9 ज़िलहज को हज की अदायगी के लिए, वकूफ अरफा के लिए जब मैदान अरफात के अंदर आती है तो क्या देखती है
के बहुत सारे हुज्जाज इकराम शहीद हो चुके हैं। वजह पूछती है, रीजन पूछती है, तो उनको बताया जाता है कि हरम शरीफ से लेकर मैदान अरफात तक पानी की बहुत किल्लत है, पानी की बहुत कमी है। तो ये हाजी साहब जो शहीद हुए हैं, प्यास की वजह से शहीद हुए हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ गो हो जाती है कि मालिक मौला मुझे इतनी तौफीक दे, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं हाजी साहिबान के लिए पानी का कोई बंदोबस्त कर सकूं। वहां पर उनको अपना वो ख्वाब भी याद आ जाता है। जब वापस अपने कंट्री, अपने मुल्क में जाती है, खलीफा हारून रशीद से इजाजत लेती है, अपने खलीफाओं को हुक्म देती है कि फौरन से इंजीनियर को बुलाओ और यहाँ से नहर बनाना शुरू कर दो। इराक से एक दरिया बहता था, दरिया दजला, दरिया दजला। इराक से एक दरिया बहता था, दरिया दजला। वहां से वो इंजीनियर ये नहर निकालना शुरू कर देते हैं और इस नहर को बनाने में तकरीबन 3 साल लगे थे। इस नहर को बनाने में तकरीबन 3 साल लगे थे। ये नहर इराक से होती हुई, मुल्क शाम से होती हुई, ताइफ की वादियों से होती हुई जबल रहमत पहाड़ पर पहुंची थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। राइट साइड दाएं साइड पर देखते जाए, पत्थर से बनी हुई आपको दीवार नजर आ रही है, ये नारो ज़बादा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें कि एक खातून होकर उन्होंने कितना बड़ा सदका दिया है। हमारी खवातीन भी बैठी हुई है, आप भी सफर कर रहे हैं, आप भी सदका किया करें। जब ये नहर मुकम्मल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो इसको बनाने वाले जो इंजीनियर थे, इस पे जो खर्च आता है, वो सारी डिटेल, सारी तफसील लेकर जब खतून ज़बादा के पास आते हैं, तो खतून ज़बादा दरिया दजला के पास अपने महल के सामने बैठी हुई थी, अपनी दौलत के ढेर एक टेबल पर लगा देती है और कहती है कि जिसका जो जो हिस्सा बनता है यहाँ से उठा लो। जब उनके पास वो रजिस्टर लाया जाता है, जब उनके पास वो रजिस्टर लाया जाता है जिस पर इसकी सारी डिटेल लिखी होती है, तो खातून ज़बादा क्या करती है, उसको फाड़ देती है। बगैर देखे बगैर पढ़े उस रजिस्टर को फाड़ देती है, फाड़ कर दरिया में फेंक देती है और कहती है मैंने अल्लाह की रजा के लिए ये नहर बनाई है। अल्लाह पाक से दुआ करती है कि मालिका मौला, आज मैं भी तुमसे कोई हिसाब नहीं करती, कल क़यामत वाले दिन मुझसे भी कोई हिसाब ना करना। तो ये एक खातून होकर उन्होंने देखे कितना बड़ा सदका दिया है। जब तक तुर्की की गवर्नमेंट यहाँ पर थी, उस वक्त तक इस नहर में पानी आता था, अभी ये नहर बंद हो गई है। तो अपने बाएं तरफ देखते जाएं, उल्टे हाथ की तरफ देखते जाएं, जो ब्रिज पुल जो आपको नजर आ रहा है, हज के दौरान जो मेट्रो ट्रेन सर्विस चलाई जाती है, ये उस मेट्रो ट्रेन के रोड है और आगे उसका स्टेशन भी आ रहा है। 3 स्टेशन इसके अरफात में, 3 ही स्टेशन इसके वादिया मुजफ्फर के अंदर और 3 ही स्टेशन इसके मीना में है। 3 से 4 तकरीबन स्टेशन। वादिया मुजफ्फर का मैदान राइट साइड दाएं तरफ देखते जाए, 3 सुरख रोड मैंने आपको बताए थे, पहाड़ों को चीरते हुए, पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए वादिया मुजफ्फर के अंदर जो 3 सुरख रोड आते हैं, वादिया मुजफ्फर का यह वो खुशकिस्मत मैदान है जहां पर आप हुज्जाज कौम ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी थी। किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री से हाजी साहब, बच्चा है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, इसी मैदान में खुले आसमान के नीचे रात गुजारी जाती है। और वो जगह भी देखते जाए जहां पर आपने क़याम किया था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वादिया मुजफ्फर का वो खुशकिस्मत मैदान, वादिया मुजफ्फर, अल्लाह पाक फरमाता है, तो जो बातें नहीं कर रही है प्लीज, तो जो मैं आप लोगों की खातिर गला फाड़ रहा हूं। 9 ज़िलहज को जो हुज्जाज इकराम अरफात के अंदर दाखिल होते हैं, तो मैं हाजी साहब का हुकूकुल्लाह माफ कर देता हूँ। वही हाजी साहब जो वादिया मुजफ्फर के अंदर दाखिल होते हैं, तो मैं हाजी साहब के हुकूकुल इबाद भी माफ कर देता हूँ। 2 मीनार वाली मस्जिद राइट साइड पर देखते जाए, जो लोग सो रहे हैं कायदे जगा दे उनको, ज़ियारत ना मिस हो। 2 मीनार वाली मस्जिद, तारीख इस्लाम की वो मस्जिद, तारीख इस्लाम की वो प्यारी मस्जिद जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है, मस्जिद मशअदुल हरम बा मुजफ्फर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ियारत करते जाएं। ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है, पूरे साल में सिर्फ एक दिन इसको खोला जाता है।
9 जिलहज वाले दिन रात को मगरिब की अजान होती है और यहाँ पर 2 नमाजें होती हैं। दानव साइडों पर देखेंगे छोटे छोटे कंकर पड़े से वादी है साहब, पीछे से आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है साहब आपके पास? नहीं आती है? कुछ बताना है इनको साथ में बुजुर्ग के बारे में। तवज्जो फरमाएंगे, वादी मुहस्सर से हमारा हुजूर होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी आप इस वादी से गुजरे, हज के दौरान, उम्रे के दौरान, पैदल सफर कर रहे हैं या गाड़ी में सफर कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए गुजरे और जल्दी जल्दी गुजरा करें। अबरा यमन का बादशाह था। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम मुसलमान हज करते हैं, उम्रा करते हैं, खाने काबे का तवाफ करते हैं, सफा मरवा करते हैं, तो इसी तरह अबरा ने अपने कंट्री, अपने मुल्क में एक गिरजा घर बनाया था। हर किसी को कहता था इसी की पूजा करो, इसी का तवाफ करो। बातें नहीं करनी है, प्लीज मेरी बात सुननी है आपने। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 55 दिन पहले का वाकया है। मक्का के अंदर ये बात मशहूर हो जाती है, मुसलमान गुस्से में आ जाते हैं। ये जो खेमे आपको नजर आ रहे हैं, ये वादी मुजल्फा के अंदर बनाए गए हैं। मीना अभी बाद में आएगा। यहाँ से हमारे एक मुसलमान भाई यमन में चले जाते हैं, उस गिरजाघर की बेअदबी कर देते हैं, बेहुरमती कर देते हैं। उसके बाद अबरा तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और वो मक्का पाक पर हमले के लिए अपनी एक फौज तैयार करता है, हाथियों का एक लश्कर तैयार करता है। हाथियों का वो लश्कर जब वादी मुहस्सर में पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अबाबील, एक छोटे परिंदे, एक छोटी चिड़िया को हुक्म होता है, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह फील में है। वो छोटी चिड़िया समुद्र की तरफ से आती थी, अपने साथ 3 कंकर लाती थी, 2 कंकर अपने पंजों में, 1 कंकर अपनी चोंच में। वो जो भी कंकर नीचे गिराती थी, उस पर मरने वाले का नाम लिखा होता था। उस कंकर की रफ्तार इतनी तेज थी, स्पीड इतनी तेज थी कि वो कंकर इंसानी जिस्म से होकर, हाथी के जिस्म से होकर नीचे जमीन में जाता था। और इस अबरा का वो पूरा लश्कर इसी वादी मुहस्सर में तबाह हुआ था। बावाज़े बुलंद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाए, पुल के नीचे से गाड़ी बाहर निकलेगी, आगे वादी मुहस्सर आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बावाज़े बुलंद अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। दाएं साइड पर देखेंगे, खाली जगह आपको नजर आएगी। ये वादी मुहस्सर है, दाएं तरफ देखते जाए, ये आगे खाली जगह आपको नजर आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये वादी मुहस्सर है जहाँ पर अजाब नाजिल हुआ था। सामने आप देखें, मीना के बोर्ड लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये वादी मीना और वादी मुजल्फा के दरमियान में ये वादी है जहाँ पर अजाब नाजिल हुआ था। मकाम इस्माइल की कौन कौन ज़ियारत करेगा जहाँ पर कुर्बानी हुई थी? सब करेंगे। पूरी दुनिया में आज जो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की जाती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर, अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब को सच्चा करने के लिए इसी मुकाम पर लेकर आते हैं। तकबीर उला पढ़कर छुरी चला देते हैं, छुरी चल जाती है। पहाड़ के ऊपर पहाड़ के ऊपर छोटा सा गुंबद, छोटा सा मीनार बना हुआ आपको नजर आ रहा है। यह मकाम इस्माइल है जहाँ पर कुर्बानी हुई थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहाड़ के ऊपर देखते जाए, बुजुर्ग लोगों को भी बताना है। पहाड़ के ऊपर छोटा सा गुंबद, छोटा सा मीनार बना हुआ आपको नजर आ रहा है। ये मकाम इस्माइल है जहाँ पर कुर्बानी हुई थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहाड़ के ऊपर छोटा सा गुंबद, छोटा सा मीनार बना हुआ आपको नजर आ रहा है। ये मकाम इस्माइल है जहाँ पर कुर्बानी हुई थी। जल्दी से फोटो तस्वीर लेनी है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती इतनी देर। जल्दी से फोटो तस्वीर ले लें, फिर हम आगे निकलते हैं।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम इस्माइल है जहाँ पर कुर्बानी हुई थी। जल्दी करें भाई साहब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बैठ जाइए अपनी अपनी सीटों पे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंखों से पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं, नीचे जमीन की तरफ देखते हैं, अपने पैर की तरफ देखते हैं। तो अल्लाह पाक ने जन्नत में से एक मेंढा, एक दुम्बा बेचकर आज हम सबकी जान बचाई, वरना आज इंसानी जान की कोई भी कुर्बानी ना देता। तो फरमाएंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, हाजरा इस्माइल को तैयार करो, हमने दावत पर जाना है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे को तैयार करती है, बाबा जानी के साथ दावत पर भेज देती है। शैतान इब्लीस वहां पर चला जाता है। हाजरा, आपने इस्माइल को कहाँ भेजा है? हाजरा कहती है कि वो बाबा जानी के साथ दावत पर गए हैं। नहीं हाजरा, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लेकर गए हैं। क्या कोई बाप इतना जालिम होता है जो अपनी औलाद को ज़बह करेगा? तो शैतान इब्लीस से कहा कि नहीं हाजरा, ये अल्लाह का हुक्म है, कुर्बान जाओ उस माँ पर। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरा एक इस्माइल नहीं, मेरे पास लाखों करोड़ों इस्माइल होते, मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। ये मुकाम इस्माइल है। तो प्यारे हुज्जाज इकराम, ये जितने मुकद्दस मकामात की हम ज़ियारत कर रहे हैं, जिनकी ज़ियारत हो रही है, जिनकी आगे ज़ियारत करनी है, एक एक मुकद्दस मकाम का वाक़या इतना लंबा है कि यहाँ पर अगर मैं खड़े होकर बोलना शुरू कर दूं, यकीन कीजिए हमारा सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक एक मुकद्दस मकाम का वाक़या खत्म नहीं होगा। वक्त अपने दामन में वसत नहीं रखता, क्योंकि हमारा मकसद ज़ियारत का है, हमारा मकसद ज़ियारत का है। तो अगर मैं डिटेल तफसीर में चला जाऊंगा तो फिर हम इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत से महरूम रहेंगे। ये मुख्तसर से आपको तारुफ करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे साथ भी तावन किया, अगर यही पूरे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर हम ताइफ में भी इकट्ठे चलेंगे, बहुत वक्त होगा हमारे पास, तो फिर वो आगे वाला वाक़या भी मैं आपको वहां पर सुनाऊंगा। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आपको मेरा नंबर आप सबके पास मौजूद है। किराए से कोई तल्लुक नहीं है, मेरा काम है सिर्फ ये बोलना। तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, वो मेरा नंबर भी आप ले लेना है। तो फिर आगे थे ताज में भी चलेंगे, वहां से भी अच्छी तरीके से ज़ियारतें करेंगे। मस्जिद खैफ की ज़ियारत करते जाए। अल्लाह तबारक व तआला के 70 अंबिया ने नमाजें पढ़ी है मस्जिद खैफ में, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 मीनार वाली बड़ी मस्जिद, अल्लाह तबारक व तआला के 70 अंबिया ने नमाजें पढ़ी है मस्जिद खैफ के बिल्कुल सामने। देखे 3 ब्रिज पुल आपको नजर आ रहे हैं, व्हाइट कलर सफेद कलर का छतरी नुमा आपको टेंट नजर आ रहा है, जिसके नीचे हंधेरा है। 3 शैतान यहाँ पर कैद है। सबसे छोटा शैतान, मनचला शैतान, यानी दरमियाना शैतान, और सबसे बड़ा शैतान। 3 शैतान यहाँ पर कैद है। इनको ज्यादा प्रोटोकॉल न दे। ये भाई साहब अभी बड़े गुस्से में है, इनकी तरफ आपने देखना भी नहीं है, बहुत गुस्से में है, जख्मों पर अभी मरहम लगा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त दुर्गत बनाई थी आपने इनकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जगह आप फिर इसलिए याद रखें कि इंशाल्लाह अगले साल फिर हम आयत पे आएंगे तो वही दुर्गत इसकी फिर बनेगी इन सबकी। राइट साइड दाएं तरफ मीना की खूबसूरत चादर, मीना की सफेद चादर, मीना की वो बस्ती, मीना की वो खुशकिस्मत बस्ती, वहाँ जहाँ पर आप हुज्जाज इकराम ने क़याम किया था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री में चले जाए, भाई साहब आपको ये नज़ारा, आपको ये मंजर कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये नज़ारे, ये जलवे आपको सिर्फ मीना में ही नजर आएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाथों को बुलंद करते जाए, अल्लाह पाक से दुआ करते जाए कि मालिक मौला, तूने इस साल हमें हज में बुलाया, तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। ऐ मालिक मौला, हमारे वसाइल इतने ज्यादा कर देना कि हम अगले साल भी इसी तरह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए वादी मीना के अंदर दाखिल हों। मजा आ रहा है या नहीं? कुछ समझ भी आ रही है आपको? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये नफक सुरंग जो है, टनल से हम बाहर निकलेंगे तो राइट साइड पर
मीना का खूबसूरत नजारा, मीना का खूबसूरत मंजर एक बार फिर अपने दिलों में, अपनी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए महफूज करते जाएं। प्यारे हुज्जाज इकराम, हमारे लिए भी दुआ करना, उन लोगों के लिए आपने खुसूसी दुआ करनी है। मीना देखते जाएं एक बार फिर, खूबसूरत नजारा, खूबसूरत मंजर अपनी राइट साइड पर, अपने दिलों में, अपनी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए महफूज करते जाए। देख ले जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये सारा वादिये मीना है। तो प्यारे हुज्जाज इकराम, हरम पाक में जाकर आप लोगों ने उनके लिए भी खुसूसी दुआ करनी है। अभी मोबाइल फोन आप, नूर अरबी जुबान का लफ्ज है और नूर के मानी है रोशनी, यानी रोशनी वाला पहाड़। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ियारत करते जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 2500 से 87 फीट इसकी हाइट, इसकी बुलंदी है। और यहाँ पर भी भाई साहब आपको पैदल ऊपर जाना पड़ेगा। ये पहले जो पुराने हाजी साहब होंगे, यहाँ से ये रास्ते बंद हो गए हैं। अभी नए वाले रास्ते बन गए हैं, वो पीछे से, वो पीछे से देखें, वो नए वाले रास्ते बन गए हैं। वो गाड़ी वाले भाई आपको उधर ऊपर जाकर उतारेंगे, वहां से आपने पैदल ऊपर जाना है। प्यारे भाई साहब जो पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे, थोड़ा सा आगे जाकर नीचे उतरेंगे, गौर से देखें, छोटी सी आपको गली नजर आ रही है। ये गारे हिरा है। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको भी जगा दे इनको, ताकि ज़ियारत करने से। इस गार में कहीं कहीं बार रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में इत्काफ किया करते थे। इसी पहाड़ पर कुरान करीम की पहली वही, पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी लेकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे थे। ज़ियारत करते जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 2500 से 87 फीट इसकी हाइट, इसकी बुलंदी है। और यहाँ पर गारे हिरा पे जाने का जो बेस्ट टाइम है वो असर के फौरन बाद का है। ज़ियारत करते जाएं। आगे इंशाल्लाह हम मुकम्मल अब्बास की ज़ियारत करेंगे। सलाम कीजिए, दाएं तरफ कब्रिस्तान आपका नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये हजरत के फैसले होते थे। मकाम अब्बास यानी अदल और इंसाफ वाली जगह। इसके बाद ये मकान अताश था, जो कब्रिस्तान वो मकान अताश था। मकाम अब्बास आगे जन्नतुल माला आ रहा है। जन्नतुल वाला कब्रिस्तान आ रहा है। बातें नहीं करनी है, दुआ कर लीजिए, अपने दिल से दुआ कर लीजिए। जन्नतुल वाला कब्रिस्तान आ रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली अज़वाज मोहतरात सैयदना खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। बहुत से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह की भी यहाँ पर कब्रें बनाई जाती है। जो हुज्जाज इकराम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी कब्रें भी जन्नतुल माला कब्रिस्तान के अंदर बनाई जाती है। दो हिस्से हैं जन्नतुल माला कब्रिस्तान के। सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र। ये जन्नतुल वाला कब्रिस्तान है। और पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ नजर आ रहा है, उसके नीचे अंदर जो बंगला बना हुआ है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली अज़वाज मुहतरात सैयदना खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वहां पर कब्र मुबारक है। जन्नतुल माला कब्रिस्तान के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यहाँ तक, दूसरा हिस्सा ये रोड क्रॉस करेंगे आप, ऊपर से जो पुल जा रहा है वो क्रॉस करेंगे और आगे इसका
दूसरा हिस्सा है। असर के फौरन बाद इसके गेट खोले जाते हैं। मस्तूरात लेडीज के लिए अंदर जाना ममनू है, जेंट्स लोग अंदर जा सकते हैं। असर के फौरन बाद इसके गेट खोले जाते हैं। आगे 3 मस्जिदें आ रही है, आगे 3 मस्जिदें बिल्कुल करीब करीब। मस्जिद जिन, जहां पर सूरह जिन नाजिल हुई थी, और इसी जगह पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद के बाद कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, तो बिद नज़म जिन्नात का एक गिरोह यहाँ से गुजर रहा था। तो तिलावत कलाम पाक से मुतासिर होकर उस गिरोह ने यहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। ये राइट साइड पर देखते जाए मस्जिद जिन। मस्जिद जिन से आगे मस्जिद फतह, जहाँ पर फतह का झंडा लहराया गया था। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ज़ियारत करते जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये मस्जिद सिर्फ नमाज के टाइम ही खोली जाती है। आगे दाएं तरफ मस्जिद आ रही है, मस्जिद फतह। फतह मक्का के बाद यहाँ पर फतह का झंडा लहराया गया था। अपने बाएं तरफ देखेंगे आगे मस्जिद शजर, जहाँ पर एक पेड़, एक दरख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की गवाही दी थी। उसके बाद यहाँ पर यह मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद का नाम मस्जिद शजर रखा गया। दाएं तरफ ये छोटी सी मस्जिद, मस्जिद फतह, मस्जिद शजर। और बिल्कुल हरम के साथ में देखे ये सफा मरवा वाला गेट है। हमारी गाड़ी यू टर्न लेकर उतर पुल के पास ऊपर से गुजरेगी तो आपने फिर देख लेना है, ये सफा मरवा वाला गेट है। साथ में जो पहाड़ है ये जबल अबू कबास पहाड़ है। कौन सा पहाड़? पीछे से आवाज नहीं आ रही। कौन सा पहाड़? जबल अबू कबास पहाड़। बिल्कुल हरम के साथ में देखे, इसी पहाड़ पर खड़े होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। इसी पहाड़ पर जन्नत का पत्थर हजरे अस्वद को उतारा गया था। इसी पहाड़ पर जन्नत का पत्थर हजरे अस्वद को उतारा गया था। अगर मस्जिद आशा से आपने उम्रा करना है, यहाँ से फ्री वाली बस आपको मिलेगी। मस्जिद जोराना में जाना है, यहाँ से फ्री वाली बस आपको लेकर जाएगी और मस्जिद में छोड़ेगी। वहाँ से दूसरी बस आपको मिलेगी, वो यहाँ पर आकर आपको उतारेगी। कोई आपसे किराया नहीं लेंगी। ये बात कोई भी नहीं बताता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फ्री वाली बस है ये, ठीक है। तो इस बस में आप आ जाना। इस जगह का नाम है गजा कुबरी। सफा मरवा वाला ये गेट है, उससे बाहर 7 नंबर अबू जाल वाले हमाम आएंगे, उससे बाहर ये कुबरी बनी हुई है। इसी पहाड़ के पिछले साइड पर सफा मरवा का गेट आप क्रॉस करेंगे तो आगे जो पुल आ रहा है, पुल की बिल्कुल बैक साइड पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक था। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम जबल सौर, गारे सौर की ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। ज्यादातर सो गए हैं। आखिरी ज़ियारत है सब, थोड़ा आंखें खोल दें, फिर होटल में जाकर बेशक सो जाना। वाक़या सुनाऊंगा और बहुत ही दिलचस्प वाक़या आपको सुनाऊंगा गारे सौर का। तो जरा अगर जाग जाए तो तवज्जो आपकी हो। तो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहर मक्का को छोड़कर, शहर मक्का को अलविदा करके मदीना शरीफ की तरफ जा रहे थे, तो किस तरह गारे सौर में पहुंचे थे, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अगर आप सुने तो मैं थोड़ा सा बोलूं, वरना मेरा गला बंद हो गया है। सुन रहे हैं, जाग रहे हैं सारे। जब कुफार मक्का को यह पता चल गया कि लोग जोगता इस्लाम में दाखिल रखेंगे, मेरा घर यहाँ पर आ गया था, मैंने उतर जाना था, ड्राइवर साहब आपको ज़ियारत करवा देते, लेकिन नहीं, मैंने आपसे वादा किया था कि आखिरी दम तक आपके साथ रहूंगा।
जब कुफार मक्का को यह पता चल गया कि लोग तो जोगता इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, दीन इस्लाम का फैलाव बढ़ रहा है, तो फिर उनको टेंशन हो गई, परेशानी हो गई कि ऐसा ना हो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले जाएं, वहां से अपने हामियों के साथ मक्का पाक पर हमला कर दे और इस तरह हम लोग मारे जाएं। इसी टेंशन परेशानी के आलम में कुफार मक्का के जितने भी कबाइल थे, उनमें जितने भी बड़े दानिश्वर सरदार थे, उन सब ने मिलकर अपने दारुल अपने पंचायत घर में एक मीटिंग बुलाई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब उस मीटिंग में यह तय होना था कि दीन इस्लाम का जो फैलाव बढ़ रहा है इसको हम कैसे रोकें। उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सब सरदारों ने अपनी अपनी तजावीज देना शुरू की। बाद सरदारों ने यह तजवीज दी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर निकाल देते हैं। बाद सरदारों ने यह तजवीज दी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बंद कोठरी में कैद कर देते हैं, माज़अल्लाह वहां पर ही इनको खाना और पानी देते हैं। लेकिन शैतान इब्लीस ने कहा, शैतान इब्लीस भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गया था, कंबल ओढ़कर पहुंच गया था। तो जब इससे निस्बत पूछी गई तो इसने कहा कि मैं शेख नजद हूं। शैतान का काम ही होता है बरगलाना, आप समझ रहे हैं कि मैं शेख नजद हूं, मैं भी आपकी इस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए शामिल होने के लिए आया हूं ताकि अपनी कोई तजवीज दे सकूं। सबने जब अपनी अपनी तजावीज देना शुरू की तो इस जालिम ने, इस खबीस इब्लीस ने कहा कि मुझे इस किसी भी तजवीज से इत्तेफाक नहीं है। मुझे पता है कि आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से अगर बाहर निकाल देंगे तो इस तरह दीन इस्लाम के फैलाव पर आप कंट्रोल हासिल कर लेंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। अगर आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद कोठरी में कैद कर देंगे तो आप लोग नहीं जानते कि इनके चाहने वाले जान निसार अपनी जानों को नजराना पेश करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कैद से छुड़ा लेंगे। यहाँ पर सब सरदार सर पकड़कर बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अभी क्या किया जाए, किस तरह हम दीन इस्लाम के फैलाव पर कंट्रोल हासिल करें। तो इसी जालिम इब्लीस ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मेरे पास एक तजवीज है। यहाँ पर सबके कान खड़े हो जाते हैं कि जी बोलिए, आपके पास कौन सी तजवीज है। तो शैतान इब्लीस ने कहा कि मेरे पास ये तजवीज है कि कुफार मक्का के जितने भी कबाइल हैं, उनमें जितने भी बहादुर और दलेर नौजवान हैं, उन सबको एक सफ में इकट्ठा किया जाए, उनके हाथों में तलवारें दी जाएं और वो यकबा होकर हमला करेंगे और माज़अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। इस तरह बनु हाशिम हमसे जंग नहीं कर पाएंगे, हम खून का हदिया दे देंगे और फिर आराम और सुकून के साथ मक्का में रहेंगे। शैतान की इस तजवीज से सबको इत्तेफाक हो जाता है। ये मजलिस बर्खास्त हो जाती है, सब लोग ये खूनी मंजर अपने ज़हन में लिए हुए अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। उधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफार मक्का के काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए हैं, आप ऐसा करें मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ चले जाएं। हुक्म खुदाबंदी की पैरवी करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने करीबी साथी, अपने यारो गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाते हैं। ये सारा माजरा बयान करते हैं। कुर्बान जाऊं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान। हिजरत के सफर में आप मुझे भी अपने साथ रख ले। कोई उज़र पेश नहीं किया, ये नहीं कहा मक्का में हमारा बिजनेस है, मक्का में हमारा कारोबार है, बल्कि फरमाया कि हिजरत के सफर में आप मुझे भी अपने साथ रख ले। हिजरत की तैयारियां शुरू हो जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टेंशन, जो परेशानी थी, अल्लाह के मेहमानों बिल्कुल गाड़ी के फ्रंट शीशे से राइट साइड पर देखते जाए, बुलंद वाला पहाड़ आपको नजर आ रहा है। 5413 फीट इस पहाड़ की हाइट, इस पहाड़ की बुलंदी है। ये जबल सोर यारो सोर है। जबल पहाड़ को कहते हैं, सोर एक पहाड़ का नाम है। और जब इस पहाड़ की हम ज़ियारत करेंगे, ये पहाड़ बिल्कुल हमें बैल की शक्ल का नजर आएगा। और इसी पहाड़ की बैक साइड पर चंद कदम के फासले पर गारे सोर है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों की अमानतों की फिक्र थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर में बुलाते हैं और कहते हैं, अली आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह होते ही मक्का वालों की अमानतों वापस करके तुम भी मदीना शरीफ चले आना। यहाँ पर हम सब जरा सोचे, जरा अपने ज़हन में सोचे कि अगर आज रात हमारी जान का खतरा है, मुझ समेत जितने भी हुज्जाज इकराम गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जिस किसी को आप जितनी डिमांड करेंगे, जितना पैसा देंगे, कोई भी आपको साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाऊं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आ जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आ जाते हैं। राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो जाते हैं। कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं। शहर मक्का से मुखातिब होते हैं, ऐ शहर मक्का, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी कौम ने मुझे मायूस किया है। अब्दुल्ला बिन उरीकत, जो एक बंदा मदीना शरीफ जाने वाले रास्तों का माहिर था, उसके हवाले 2 ऊँटनियाँ करते हैं और कहते हैं, अब्दुल्ला 3 दिन गुजारने के बाद इन ऊँटनियों को लेकर गारे सौर के दामन में आ जाना, फिर हम मदीना शरीफ की तरफ चलेंगे। हिजरत का सफर शुरू करने के लिए अपने डोर दरवाजे पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि कुफार मक्का बहुत बड़ी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जमा है। यहाँ पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा जाते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर आप घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो राइट साइड पर देखते जाएं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अपने राइट साइड पर बुलंदा वाला पहाड़ आपको नजर आ रहा है, जबले सोर गारे सोर। ऐसा थोड़ी देर के लिए नीचे उतरेंगे या बहुत ज्यादा धूप है, यहाँ गाड़ी से ही हम ज़ियारत कर लेते हैं। हाँ, नीचे नहीं उतरना है। तो ये ज़ियारत करते जाए प्यारे भाई साहब, ये पैदल जाने वाले रास्ते हैं। गौर से देखते जाए कि हुज्जाज इकराम पैदल ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल लास्ट चोटी के ऊपर आपको एक बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है। गौर से देखें, सबको नजर आ रहा है, बिल्कुल लास्ट चोटी के ऊपर सबको नजर आ रहा है बड़ा पहाड़ जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट चोटी के ऊपर बैल की शक्ल का पहाड़ आपको नजर आ रहा है। ये जबले सोर है। इसी की बैक साइड पर चंद कदम के फासले पर गारे सोर है। 5413 फीट इस पहाड़ की हाइट, इस पहाड़ की बुलंदी है। और गौर से देखते जाए, नीचे से देखते जाए कि तपती धूप में और इतनी सख्त गर्मी में ये हुज्जाज इकराम, अल्लाह के मेहमान, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर पहाड़ के नीचे भी देखे कि हुज्जाज इकराम कुछ अभी वापस नीचे उतर रहे हैं। गारे सोर पे जाने का जो बेस्ट टाइम है वो सुबह फजर के फौरन बाद आप अपने होटल से निकले, टैक्सी करवाएंगे, 10 रियाल टैक्सी वाला लेगा और यहाँ आकर नीचे आपको पैदल रास्ते पर उतारेगा और वहां से फिर आपने पैदल ऊपर जाना है। 5413 फीट इसकी हाइट, इसकी बुलंदी है। इस पहाड़ के ऊपर कोई गाड़ी नहीं जाती। ये नीचे आपको देखे रोड नजर आ रहे हैं, ये रोड बन रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इनको रोक दिया है क्योंकि ये थोड़ा आगे चलकर हम देखेंगे यहाँ पे म्यूजियम तैयार हो रहा है। ये सऊदी गवर्नमेंट इस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए अच्छे इंतजाम कर रही है। यहाँ से कोई लिफ्ट वगैरह का सिस्टम बन रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। प्यारे हुज्जाज इकराम, यहाँ पर पहुंचकर हम लोग इस पहाड़ को देखकर परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसकी बुलंदी पर, इसकी चोटी पर पहुंचेंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंध पर उठाया हुआ था और इस पहाड़ पर चले थे। ज़ियारत करते जाए, सबकी ज़ियारत होगी है जी, कोई जाता तो नहीं है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह फजर के फौरन बाद आप अपने होटल से निकले और इस पहाड़ पर चलना शुरू कर दे। गारे हिरा पे जब आप जाएंगे तो वो असर के बाद भी आप जा सकते हैं। प्यारे हुज्जाज इकराम, यही वो गार है जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी। इसी गार के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सांप ने 4 बार काटा था। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर के अंदर तशरीफ फरमा होते हैं तो एक खुशकिस्मत मकड़ी का हुक्म होता है कि फौरन से यहाँ पर जाला बना दो, एक बिक्री
को हुक्म होता है कि यहाँ पर अंडे छोड़ दो। ये राइट साइड दाएं तरफ आगे आप देखेंगे, यहाँ पे ये म्यूजियम तैयार हो रहा है। ये सऊदी गवर्नमेंट इस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए अच्छे इंतजाम कर रही है। यहाँ से कोई लिफ्ट वगैरह का सिस्टम बन रहा है। तो प्यारे भाई साहब, ये सामने म्यूजियम बन रहा है, देखते जाएं। तो तवज्जो फरमाएंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत तिलावत करते हुए जमीन से मिट्टी उठाते हैं, उस मिट्टी को हवा में फेंक देते हैं। उस मिट्टी का पन्ना था कि कुफार मक्का की आंखें बंद हो जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता। सफर तय करते हुए कोई रास्ते नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई गाड़ियां नहीं है, नुकीले पहाड़ है, खारदार झाड़ियां है, रात का समय है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ पर सफर तय करते हुए इसी जबल सौर गारे सौर के दामन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अगर मुझे हुक्म हो तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठा लूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठा लिया था और इस पहाड़ पर चलने शुरू कर दिया था। कुफार मक्का का खौफ, कुफार मक्का का डर, रास्ते में बैठ कर कोई रेस्ट तक नहीं करते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। रात का समय है, कोई रास्ते नहीं है, नुकीले पहाड़ है, खारदार झाड़ियां हैं। जब गारे सौर में पहुंचकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में उतरने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहां पर भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुकावट बन जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रुक जाइए, मैं सबसे पहले गार में जाता हूँ। सीरत की किताबों में लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले गारे सौर में जाते हैं। अपनी चादर, अपना इमामा, अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार की अच्छी तरह से सफाई करते हैं। गार में मौजूद जितने भी छोटे छोटे सुराख थे उन सबको बंद कर देते हैं। उसके बाद कमले वाले सरकार गार के अंदर तशरीफ लाते हैं और अपने यार गार की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। एक और मौजज़ा हासिल था, जब गार के अंदर जाते हैं तो खुशकिस्मत मकड़ी को हुक्म होता है कि फौरन से यहाँ पर जाला बना दो। एक कबूतरी को हुक्म होता है कि यहाँ पर अंडे छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और मौजज़ा हासिल था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक था वो खुशबूदार था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर जाते हैं, पूरी गार मुअत्तर हो जाती है, पूरी गार में खुशबू बढ़ जाती है। बाज़ रिवायात में आता है इसी गार के अंदर कई सालों से एक सांप भी मौजूद था, जिसने उलमा इकराम से सुना था कि कमली वाले सरकार जहाँ पर तशरीफ लाएंगे मैं उनका दीदार करूंगा। उस सांप ने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि मालिक मौला मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर लो। उसने ये दुआ की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर के अंदर तशरीफ फरमा होते हैं तो उस वक्त वो सांप अपनी गार से बाहर था अपने खाने के सिलसिले में, अपने खाने के बंदोबस्त के लिए। लेकिन जब उसको पसीना मुबारक की खुशबू आती है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाता है। मालिक मौला, आज मुझे पता चल गया है कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। आज मुझे पता चल गया है मेरा यार इस गार में तशरीफ ला चुका है, मुझे मेरे यार के पसीना मुबारक की खुशबू आ गई है। ये मस्जिद राजी दाएं साइड पर देखते जाए, अल्लाह का बहुत ही प्यारा घर। जब भी अल्लाह के घर को देखे आपकी जुबान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने से न रुके। एक सऊदी शेख ने अपनी वालिदा के नाम से ये मस्जिद तैयार करवाई है, मस्जिद राजी, जदीद दौर की जदीद मस्जिद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पागल दीवाना वो सांप गार की तरफ दौड़ना शुरू हो जाता है, गार की तरफ भागना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो गार के पास पहुंचता है तो उसको मायूसी हो जाती है। मायूसी किस वजह से होती है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सारे उसके रास्ते बंद कर दिए थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गार में एक सराख रहता था, वहां पर अपनी पेड़ी रखी थी, अपना पाँव मुबारक, अपनी एड़ी रखी थी। सांप वहां पर आता है, उसको नरमी महसूस होती है, काटना शुरू कर देता है, डसना शुरू कर देता है। एक बार काटता है, वापस चला जाता है। जब उसको कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता, यानी कि 4 बार उसने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काटा है। यहाँ पर जरा सोचे कि हमें एक कांटा चुभ जाता है कितनी तकलीफ होती है, लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सांप के डंक बर्दाश्त कर लिए। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल नहीं डाला। इसी पहाड़ की चोटी पर
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाबा जानी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हरम शरीफ से खाना और पानी लेकर हर रोज जाती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए थे और वहां पर पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद कुबा तैयार की थी। तो प्यारे हुज्जाज इकराम, ये मुख्तसर सा वाक़या जबल सौर गारे सौर का था। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस मल्क कायनात का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि मक्का पाक के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अभी हम होटल में जाएंगे खाना वगैरह खाकर और नमाज ज़ोर भी हमारे हदूद हरम के अंदर होगी अल्हम्दुलिल्लाह और हम 1 लाख नमाज का सवाब भी कमाएंगे। तो प्यारे हुज्जाज इकराम, इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान से गलती सरसद हो